Hello dear students, today we are going to start complex numbers exercise 1.4. See question number 7. Use De Moivre's theorem and simplify the following. So what is De Moivre's theorem? First we discussed about De Moivre's theorem. So De Moivre's theorem, you can check here cos theta plus I sin n theta whole raised to n equals cos n theta plus I sin n theta. तो दिस इज नोन एज डी मोइवर्स थ्योरम। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी था कि डी मोइवर्स थ्योरम है क्या रियल में। चलो, नाउ वी नो डी मोइवर्स थ्योरम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। नाउ सी इट्स फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा होल रेज टू 7 upon cos 4 theta plus I sin 4 theta whole cube. So we have to simplify this by using De Moivre's theorem. Now see the solution, how to simplify the question and how to apply De Moivre's theorem in these terms. Since cos 2 theta plus I sin 2 theta whole raised to 7 upon cos 4 theta plus I sin 4 theta whole cube can be written as, सबसे पहले देखो इसका न्यूमरेटर क्या देखना है, न्यूमरेटर। तो cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इज ऑफ द फॉर्म cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो चलो हम पूछते हैं कि यहाँ से n की वैल्यू क्या है। cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इक्वल्स cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, देयरफॉर n इक्वल टू 2। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, तो हम लोग क्या करेंगे इस थ्योरम का रिवर्स। जैसे हमारा मेन थ्योरम यहाँ से है LHS इक्वल टू RHS, बट वी राइट हियर RHS टू LHS because cos 2 theta plus I sin 2 theta is in the form of cos n theta plus I sin n theta, which is cos theta plus I sin theta whole raised to n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos theta plus I sin theta whole square, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2, तो cos theta plus I sin theta whole square and whole raised to 7 as it is। Similarly, in the denominator cos 4 theta plus I sin 4 theta whole cube can be written as, अब यहाँ देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 4, ये इस टाइप का है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है इसमें, व्हाट इज n इन द डिनोमिनेटर 4, सो इट कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 4 होल क्यूब। नाउ सिंप्लीफाई दिस, so we see that base of numerator means cos theta plus I sin theta and cos theta plus I sin theta both are same but their powers are different. So according to indices property, if bases are same, then we subtract, means in the numerator and denominator, or you can say in the fraction, so we subtract the powers. Here cos theta plus I sin theta equal raised to, here 2 into 7 14 and here 4 into 3 12, so cos theta plus I sin theta whole raised to 14 minus 12, taking in the numerator, so subtracted by indices property. So now it can be written as cos theta plus I sin theta whole square, again using De Moivre's theorem here. So here n is 2, therefore it can be written as cos 2 theta plus I sin 2 theta, right? तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू कुछ पता नहीं है, तो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन, cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा। ओके, तो यहां से हमें कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है क्योंकि यहां से हमें कंफ्यूजन होगा। हाँ, इन केस suppose this question given in the competitive exams and you have to simplify for multiple choice, then you can take directly 7 into 2 and here 3 into 4, it is 14 minus 12. So you should write 14 minus 12, that is cos 2 theta plus I sin 2 theta directly and choose your correct option. ओके, तो ये रहा डी मोइवर्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर है cos 2 थीटा प्लस आई sin 2 थीटा मिल गया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड भी है। योर सेकंड क्वेश्चन cos 5 थीटा प्लस आई sin 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा माइनस आई sin 3 थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कोई भी पावर नहीं है, लेकिन इसमें भी डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखो cos 5 थीटा प्लस आई sin 5 थीटा,
तो यहां पर ये तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या दे दिया, cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा। अब यहां पर है माइनस साइन, तो सबसे पहले हमें इस माइनस साइन को क्या करना है, प्लस साइन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो नाउ सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। cos 5 theta plus I sin 5 theta, numerator will be same, but in the denominator we change some angles. So here cos of minus 3 theta plus I sin minus 3 theta whole square जैसा है वैसा ही as it is लिख देंगे, because cos minus 3 theta, cos of minus 3 theta equal to cos 3 theta and sin of minus 3 theta equal to minus sin 3 theta. It is a formula. क्योंकि हम अभी cos नेगेटिव और साइन नेगेटिव के लिए एंगल्स पहले भी पढ़ चुके हैं। तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या किए, प्लस और एंगल को यहाँ पर कर दिया साइन ऑफ माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पर cos ऑफ माइनस 3 थीटा में ये पॉजिटिव ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर माइनस साइन हमने इंक्लूड किया है, तो ये प्लस आई साइन माइनस 3 थीटा, क्योंकि जब जैसे ही साइन ऑफ माइनस 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, उसका रीजन यहाँ दे दिया गया, इजिली यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ इट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 5 बाई डी मोइबर्स थ्योरम, क्योंकि अब यहाँ देखो n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 5 बाई डी मोइबर्स थ्योरम। इन द डिनोमिनेटर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू माइनस 3 एंड होल स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू क्या है, देखो माइनस 3, इसके लिए यहाँ पर क्या आया, रेज टू माइनस 3 एंड होल स्क्वायर एज इट इज। तो अब यहाँ पर भी सेम है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, टेकिंग इन द न्यूमरेटर वी गेट प्लस 6, क्योंकि इंडाइसिस प्रॉपर्टी है, अगर दोनों का बेसिक पार्ट से बेस सेम है तो हम इसके न्यूमरेटर को ऊपर ले सकते हैं, और अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू 5 प्लस 6। Now 5 plus 6 becomes 11. Again using De Moivre's theorem we get it is equal to cos 11 theta plus I sin 11 theta. So this is the final answer for this question. तो यहाँ पर लिख सकते हो by using De Moivre's theorem, या और भी लिख सकते हो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। देखो यहाँ पर n क्या है, 5 प्लस 6 दैट इज 11, तो डायरेक्टली यू कैन राइट हियर cos 11 थीटा प्लस आई साइन 11 थीटा। नाउ सी नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। cos of 7 pi upon 13 plus I sin 7 pi upon 13 raised to 4 upon cos 4 pi upon 13 minus I sin 4 pi upon 13 raised to 6। अब ये क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लेना है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा एंगल जो है फ्रैक्शन में दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, नो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो बाय इजी वे। नाउ सी द सॉल्यूशन। cos of 7 pi upon 13 plus I sin 7 pi upon 13 whole raised to 4 अपॉन, अब यहाँ पर देखो फिर से नेगेटिव साइन दिया है, जबकि हमारा डी मोइवर्स थ्योरम जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन। तो इसके लिए हमें ये नेगेटिव साइन को यहाँ पर एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल को ही नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर यूज करेंगे कि cos ऑफ माइनस 4 पाई अपॉन 13, तो अप्लाई करेंगे cos ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर साइन ऑफ माइनस 4 पाई अपॉन 13 इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों एंगल्स को क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। सो cos 7 पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन 7 पाई अपॉन 13 रेज टू 4 अपॉन cos माइनस 4 पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन माइनस 4 पाई अपॉन 13 होल रेज टू 6। इट इज इक्वल टू cos पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन पाई अपॉन 13 होल रेज टू 7 इंटू 4। देखो 4 तो एज इट इज है, 7 n की वैल्यू यहाँ पर देखो 7 पाई था, और यहाँ भी 7 पाई, तो ये है n इक्वल टू 7। तो हमने 7 को क्या किया, इसके इंडेक्स में रख दिया बाय यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। इन द डिनोमिनेटर n इक्वल टू माइनस 4, यहाँ पर n क्या है, माइनस 4,
तो cos पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन पाई अपॉन 13 रेज टू -4 इंटू 6। सिंस cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n। तो ये थ्योरम्स जो है यहाँ पर बार बार हमें रिपीट करना होगा, क्योंकि थ्योरम के ऊपर ही ये सभी क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। और जो नेगेटिव का चेंजेस था इसके लिए देखो cos ऑफ -4 पाई अपॉन 13, तो यू कैन चेक हियर cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड साइन ऑफ -4 पाई अपॉन 13 साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हो गए। अब चलो देखते हैं यहाँ पर cos पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन पाई अपॉन 13 रेज टू हाउ मच 28, 7 into 4, तो 28 हियर एंड इन द डिनोमिनेटर -24, so taking in the numerator we will be this will be plus 24. So cos pi upon 13 plus I sin pi upon 13 whole raised to 28 plus 24. So this will be 28 plus 24 becomes 52. So it is equal to cos pi upon 13 plus I sin pi upon 13 raised to 52. अब ये n क्या है यहाँ पर 52। चलो फिर से डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। The cos of 52 pi upon 13 प्लस आई साइन 52 पाई अपॉन 13। देखो n की वैल्यू हमने एंटर कर लिया यहाँ पर कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n के फॉर्म में है, तो n क्या है यहाँ पर 52। तो हमने इसको डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। तो cos ऑफ 52 पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन 52 पाई अपॉन 13। नाउ सिंप्लीफाइंग वी गेट इट इज इक्वल टू cos 4 पाई अपॉन 13 प्लस आई साइन 4 पाई, सॉरी, इट इज इक्वल टू cos 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई, क्योंकि 13 तो यहाँ डिवाइड हो गया ना, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, ये डिवाइड हो चुका है। बट cos 4 पाई, अब देखो cos 4 पाई मीन्स cos 720 डिग्री, तो अगर हम लोग इसको क्वाड्रेंट पर प्लॉट करते हैं तो एग्जैक्टली कहां पर आएगा, 0 डिग्री पर कोइंसाइड हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री की भी वैल्यू 1 होती है और cos 4 पाई की भी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि सेम टर्मिनल रेज आती है यहाँ पर। जैसे प्लाट करोगे अगर ये 720 डिग्री का एंगल, तो कहां पर आएगा, 0 डिग्री पर। और साइन 4 पाई ये भी 0 डिग्री पर आएगा, साइन 0 इज 0, तो साइन 4 पाई इज 0। तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 0। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो गया, टोटली 0। सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज 1। और अगर किसी को फॉर्मूला नहीं बाहट है तो यहाँ से चेक कर लेना है, बाहट करके रखना है कि एज cos 4 पाई इक्वल टू 1 एंड sin 4 पाई इक्वल टू 0 मीन्स cos 720 डिग्री 1 एंड sin 720 डिग्री 0। इस तरह से चेक कर सकते हो और इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसका मीनिंग था कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास आज अवेलेबल थे वो सभी क्वेश्चन डी मोइवर्स थ्योरम के फॉर्म में ही दिए गए थे। डी मोइवर्स एक्सपेंशन बोल सकते हो कि डी मोइवर्स थ्योरम के फॉर्म में या डी मोइवर्स एक्सपेंशन के फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में था। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हुए और डी मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई भी करते हुए, और उसके लिए कुछ अलाइड एंगल भी हमने अप्लाई कर दिए यहाँ पर, जैसे cos ऑफ माइनस थीटा या cos ऑफ समथिंग, जो भी एंगल्स यहाँ पर आए, cos एंड साइन दोनों के लिए एंगल्स अप्लाई किए। और उस सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से हमें जो इसका आंसर मिलता है फिर से वो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के फॉर्म में ही मिलता है। तो अगर उसके हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मालूम है, सपोज यू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट टर्म, सो यू कैन सिंप्लीफाई, यू कैन पुट दैट वैल्यू एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर और अदर्स। जैसे अभी सपोज कर लो कि यहाँ पर ये 0 होता और यहाँ आई इंटू समथिंग होता, तो इमेजिनरी में भी आ सकता है, इसलिए रियल और अदर्स, रियल या इमेजिनरी दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। और अगर यहाँ पर हमको एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो यू शुड राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक इसी के फॉर्म में लिख करके छोड़ देना है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसको हमें सिंप्लीफाई करके लेना है। तो ध्यान रहे ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो नाउ डिस्कस करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो सी क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आई बी
वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। फिर से अभी यहाँ पर हमें डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करना है और ए बी बिलोंग्स टू आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 का सब क्वेश्चन फर्स्ट, 1 माइनस आई रेज टू 5। तो 1 माइनस आई रेज टू 5 में हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सिंप्लीफाई करके लेना है। तो सोल्यूशन लेट z इक्वल टू 1 माइनस आई, जो भी यहाँ पर पार्ट है हम यह अज्यूम कर लेते हैं कि लेट z इक्वल टू 1 माइनस आई वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कंपेयरिंग विथ z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देयरफॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1, यहाँ से देख लो कंपेयरिंग के लिए 1 माइनस आई इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी या बी आई। सो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1, क्योंकि ये -1 आई है यहाँ पर। ओके, सिंस r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो दोनों ही 1 प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 2। अब इसके बाद हमें फाइंड करना होता है कि थीटा की वैल्यू क्या है। तो देखो, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी सॉल्व करके बताया है अपने प्रीवियस वीडियोज में कि थीटा हमें कॉस थीटा और साइन थीटा इससे भी मिल सकता है और tan थीटा से भी मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए जो हमारे यहाँ पर वैल्यूज हैं a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1, दे लाई इन विच क्वाड्रेंट, इनका क्वाड्रेंट क्या है, सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए। तो देखो, a इज +1 एंड b इज -1, तो 1 कामा -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें सेट करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि tan जो है यहाँ पर होता है tan थीटा इज b बाई ए। योर एक्चुअल फार्मूला फॉर द आर्ग्यूमेंट आर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए। सो tan थीटा इक्वल टू b बाई ए। ठीक है, तो चलो b एंड a की वैल्यू रख लेते हैं कि b बाई ए बिकम्स -1 अपॉन 1, दैट इज -1। तो ये इजिली यू कैन से देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4। लेकिन ये माइनस साइन यहाँ बाहर है तो हम थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब ये माइनस साइन को इंक्लूड करने के लिए हमें इसको लेके चलना पड़ेगा कहां पर? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो -tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4, बिकॉज tan 2 पाई माइनस थीटा इज -tan थीटा। ये फॉर्मूला है, लिख सकते हो, नोट डाउन, tan 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। नोट कर लिए? चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहां मैंने क्लियरली लिख दिया है कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए ये सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 टू जा 8 पाई माइनस पाई, दैट इज 7 पाई अपॉन 4। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 7 पाई अपॉन 4। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट थीटा इक्वल्स 7 पाई अपॉन 4। तो हमें जो थीटा की वैल्यू मिलती है वो क्या हो गई? 7 पाई अपॉन 4। अब हम इसको लिख लेते हैं पोलार फॉर्म में। तो पोलार फॉर्म क्या है? सिंस z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, नाउ वी नो r एंड थीटा आल्सो। देखो, थीटा 7 पाई अपॉन 4 एंड r की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया था, ये यहाँ पर देख सकते हो, r इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज हियर, देयरफॉर z इक्वल टू √2 cos 7 पाई अपॉन 4 प्लस i sin 7 पाई अपॉन 4। देयरफॉर z raised to 5. Why z raised to 5? Because we need to find the value of 1 minus I raised to 5 और हमने यहाँ पर z इक्वल टू 1 माइनस आई लिया है। तो अभी तक यही सोल्यूशन चल रहा था, तो z रेज टू 5 तो इसका भी रेज टू 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ इसको इसी नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा है, राइट? देयरफॉर z रेज टू 5 इक्वल टू √2 cos 7 पाई अपॉन 4 प्लस i sin 7 पाई अपॉन 4 होल रेज टू 5। तो चलो, √2 रेज टू 5, तो √2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया 4√2। और यहां पर 7 पाई अपॉन 4 को हम फिर से ब्रेक कर लेते हैं कि cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस i sin 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग दीज टू टर्म्स वी गेट इट इज इक्वल टू 4√2 cos पाई अपॉन 4। देखो, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, इसके लिए क्या होता है? cos पाई बाई 4। और sin 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इज माइनस sin पाई बाई 4, सो प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस।
So I into sine pi by 4. Those who are interested to write the formula, you can note it. Now to write here, note down cos of 2 pi minus theta equal to cos theta and sine 2 pi minus theta equal to minus sine theta. Okay, तो चलो now z raised to 5 equals 4 root 2 into cos pi by 4 minus I sin pi by 4 whole raised to 5. Therefore, z raised to 5 equals 4 root 2 into cos 5 pi by 4 minus I sin 5 pi by 4. देखो cos theta minus I sin theta whole raised to n. Using De Moivre's theorem again, so we get cos 5 pi upon 4 minus I sin 5 pi upon 4. अब ये 5 पाई अपॉन 4 की वैल्यू हमें फिर से फाइंड करनी पड़ेगी, तो चलो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर. तो इट इज इक्वल टू 4 रूट 2 एज इट इज इंटू कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई प्लस पाई बाई 4. देखो पाई प्लस पाई बाई 4 क्या होता है 5 पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है जिसके लिए हमें डबल बेनिफिट है यहाँ पर. सो इट इज इक्वल टू 4 रूट 2. नाउ कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 इज माइनस कॉस पाई बाई 4, because cos pi plus theta equal to minus cos theta plus I sin pi by 4. अब ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि sin pi plus pi by 4 is minus sin pi by 4, तो एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस I sin pi by 4. तो 4 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस cos pi by 4 प्लस I sin pi by 4. ओके, नाउ फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी नोट कर दिया हूं, यहां से भी लिख सकते हो या मैंने डिक्टेट किया वहां से लिख सकते हो. तो cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड sin पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा. Substituting the values we get z raised to 5 equals 4 root 2 minus cos pi by 4 minus 1 upon root 2 plus I into sin pi by 4, that is 1 upon root 2. Now multiplying by 4 root 2 in the bracket. So 4 root 2 into minus 1 upon root 2 is minus 4, and 4 root 2 into I into 1 upon root 2 get cancelled. We get 4I, which is of the form a plus bi. Therefore, 1 minus I whole raised to 5 equal to minus 4 plus 4I. क्योंकि हमें अपना फाइनल आंसर a प्लस बी आई के फॉर्म में ही लीव करना है, a प्लस बी आई के फॉर्म में ही छोड़ना है, लिखना है. वी हैव टू राइट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी आई. सो इट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4i. ओके, so therefore you can say 1 minus I whole raised to 5 equal to minus 4 plus 4i, which is final answer for question number first. Now see second question. 1 plus I whole raised to 6. 1 plus I whole raised to 6. So for the solution, let z equal to 1 plus I. Comparing with z equals a plus bi. So z equal to a plus bi, therefore a equal to what? 1, and b equal to also 1. So both are plus 1 plus 1. a1 b1. Since r equal to under root a square plus b square, so 1 square is 1 and 1 square is 1 also. So 1 plus 1, that is 2, becomes r equal to root 2. तो r की वैल्यू में इजिली मिल जाती है यहाँ पर रूट ऑफ 2, जिसको हम लोग मॉडुलस भी बोलते हैं. अब हमें यहाँ फाइंड करना होता है वैल्यू ऑफ थीटा. तो थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये भी चेक करेंगे कि वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जैसे 1, 1 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू नो वेरी वेल. so theta lies in first quadrant. Since tan theta equal to b by a, it is formula, it is equals 1 upon 1 is 1 equals tan pi by 4. तो यहाँ बिना कुछ सोचे समझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 45 डिग्री होता है 1, और 45 का रेडियन कन्वर्जन है पाई अपॉन 4. Therefore theta equal to pi upon 4. Now polar form of complex number z equal to r into cos theta plus I sin theta. Therefore z equal to root 2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4. अब क्या करते हैं, हमें लाना है z रेज टू 6, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि 1 प्लस आई रेज टू 6, और इसको हमने एज्यूम किया है z. ठीक है, तो z रेज टू 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस आई रेज टू 6. ओके, तो देयरफॉर z रेज टू 6 इक्वल टू रूट 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 होल रेज टू 6. नाउ रूट 2 होल रेज टू 6 बिकम्स 8. ठीक है, रूट 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे वी गेट 8.
and using de Moivre's theorem, so we get cos 6 pi upon 4 plus I sin 6 pi upon 4. अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी गेट cos 3 pi upon 2 प्लस I sin 3 pi upon 2, 2 से डिवाइड किया ना तो हो गया, तो इट इज इक्वल टू 8 इंटू, अब देखो cos 3 pi upon 2, cos 3 pi upon 2 अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें तो 3 इंटू 180 अपॉन 2 दैट इज 270 डिग्री। तो 270 डिग्री कहाँ पर लाई करेगा, वो 270 डिग्री लाई करता है नेगेटिव ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पर होता है cos 270 डिग्री इज 0 एंड sin 270 डिग्री इज -1। तो हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस i इंटू -1, तो 8 इंटू 0 दैट इज 0, 8 इंटू माइनस आई दैट इज -8i, तो इसको हमें a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना है, तो देयरफॉर 1 प्लस आई होल रेज टू 6 इक्वल टू 0 माइनस 8i। फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, तो 0 माइनस 8i या -8i बोथ आर करेक्ट, तो देयरफॉर 1 प्लस आई होल रेज टू 6 इक्वल टू -8i। ओके, now see next one, that is third question, and these questions are very important. 1 minus root 3i whole raised to 4, देखो थर्ड क्वेश्चन है अपना 1 माइनस रूट 3i होल रेज टू 4। और हाँ, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया, 7 को हम लोगों ने डी मोइवर्स थ्योरम से एक्सपेंड तो किया, सॉल्व किया, उसका एक दूसरा भी मेथड है, हम लोग उसको उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, बट दैट मेथड इज कॉम्प्लिकेटेड एंड और यू कैन से वास्ट, तो वो मेथड काफ़ी टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में और डिफिकल्ट भी होगा स्टूडेंट के लिए, इसके लिए मैंने वो मेथड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है। हाँ, अगर किसी को चाहिए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, सर वी नीड another method for question number 7, so I'll provide. Now see third question, 1 minus root 3i whole raised to 4. See the solution, let z equal to 1 minus root 3i. Comparing with z equal to a plus bi, therefore a equal to 1 हो गया, प्लस 1 यहाँ पर दिया है और b का वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ रूट ऑफ 3। देखो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू माइनस रूट 3, ये दोनों कंपेयर कर लिया यहाँ पर, तो वी गेट a एंड b। सिंस r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर इज 1 एंड माइनस रूट 3 होल स्क्वायर इज 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू रूट ऑफ 4 दैट इज 2, तो r इक्वल टू 2। अब हमें फाइंड करना होता है थीटा की वैल्यू, तो ये तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला हो गया, सिंस z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r क्योंकि अभी तक थीटा मालूम नहीं है, तो 2 इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। नाउ टू फाइंड थीटा, सिंस tan थीटा इज b अपॉन a, b क्या है माइनस ऑफ रूट 3, तो यहां पर हम इसको माइनस ऑफ रूट 3 लिख लेते हैं। ओके, सो tan थीटा इज माइनस रूट 3 अपॉन 1 इक्वल्स माइनस रूट 3 एंड इट इज इक्वल टू माइनस tan पाई अपॉन 3, तो माइनस tan पाई अपॉन 3, अब इसे हमें चेंज करके लेना है। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज ऑफ a एंड b, a इज पॉजिटिव b इज नेगेटिव, तो प्लस माइनस, तो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan पाई अपॉन 3 कैन बी रिटन एज tan 2 पाई माइनस पाई बाय 3, therefore tan theta equals tan 2 pi minus pi by 3 because tan 2 pi minus pi by 3 is minus tan pi by 3, और इसको अगर हम लोग 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई कर देते हैं तो tan theta equals tan 5 pi upon 3, तो दिस implies that theta equals 5 pi upon 3, ये हमें मिल गई वैल्यू ऑफ थीटा। Now polar form of complex number z equal to 2 multiplied by cos 5 pi upon 3 plus I sin 5 pi upon 3। नाउ टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमारे मेन क्वेश्चन में क्या दिया है होल रेज टू 4, अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हो 1 माइनस रूट 3 आई होल रेज टू 4, तो यहाँ पर z रेज टू 4 दैट इज 1 माइनस रूट 3 आई होल रेज टू 4 हो जाएगा, तो देयरफॉर z रेज टू 4 इक्वल्स 2 इंटू कॉस 5 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 3 होल रेज टू 4। नाउ 2 रेज टू 4 becomes 16 into cos 5 pi by 3 can be written as
जो एंगल हम लोग यहाँ यूज करते हैं मोस्टली वही एंगल यहाँ भी यूज करना है। तो cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 होल रेज टू 4। बट अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर कॉस एंड साइन, देखो यहाँ पर हमने किसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया था, tan के लिए, कि tan 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इज माइनस tan पाई अपॉन 3। लेकिन यहाँ पर cos 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 क्या होता है, cos पाई बाई 3, क्योंकि cos जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव और साइन होता है नेगेटिव। तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस आई साइन पाई अपॉन 3, क्योंकि ये माइनस साइन पाई बाई 3 है इसलिए प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। So it is equal to, therefore z raised to 4 equals 16 into cos pi upon 3 minus I sin pi upon 3 whole raised to 4. Now using de Moivre's theorem. So it is equal to 16 multiplied by cos 4 pi upon 3 minus I sin 4 pi upon 3. ठीक है, अभी 4 पाई अपॉन 3 को वापस से हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको चेंज कर लेते हैं कि पाई प्लस पाई अपॉन 3 एंड हियर पाई प्लस पाई अपॉन 3 के फॉर्म में। So it is equal to 16 into cos pi plus pi upon 3, because pi plus pi upon 3 is 4 pi upon 3. So we can write here cos of pi plus pi upon 3 minus I sin pi plus pi upon 3. So it is equal to 16 into, अब देखो cos pi plus theta minus cos theta, तो 16 multiplied by minus cos pi upon 3 plus I sin pi upon 3, because sin pi plus theta is sin theta, तो theta यहाँ क्या है, pi upon 3. So it is equal to 16 multiplied by minus cos pi upon 3. तो minus sign as it is cos pi upon 3, that is cos of 60 degree is half, plus I sin 60 degree is root 3 upon 2. Now multiplying by 16 we get minus 8 plus 8 root 3i, which is of the form a plus bi. Therefore you can say z raised to 4 या इसकी वैल्यू, तो वैल्यू क्या है, 1 माइनस रूट 3i, 1 माइनस रूट 3i होल रेज टू 4 इक्वल टू माइनस 8 प्लस 8 रूट 3i. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लेंदी है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन इजीली कर सकते हो। सिंप्लीफाई माइनस 2 रूट 3 माइनस 2i होल रेज टू 5 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bi. Let z equal to minus 2 root 3 minus 2i and comparing with z equal to a plus bi. Therefore a equal to minus 2 root 3 and b equal to minus 2. Both are negative. तो यहाँ से ही कंफर्म हो जाता है कि a and b are both are negative, so theta lies in थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस माइनस साइन कौन सी क्वाड्रेंट देती है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है इसको। Since r equal to under root a square plus b square, it is equal to square root of minus 2 root 3 whole square plus minus 2 whole square. So minus 2 root 3 whole square is 12 and minus 2 square is 4. So it is therefore r equal to root of 16, that is 4. Since z equal to r cos theta plus I sin theta, it is polar form of the complex number. We need to find tan theta. So since tan theta equal to b by a, it is equal to minus 2 upon minus 2 root 3. Here minus upon minus, that is plus 1 by root 3, and 1 by root 3 किसकी वैल्यू है, tan pi by 6, क्योंकि tan pi by 6 यहाँ पर हो गया। अब tan pi by 6 के लिए हम ये आता है फर्स्ट में भी और थर्ड में भी, क्योंकि tan फर्स्ट में भी पॉजिटिव है और थर्ड में भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या है वो तो देखो, माइनस माइनस, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो वी शुड एडजस्ट दिस एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये रीजन होता है। So as theta lies in third quadrant, therefore tan theta equals tan pi plus pi by 6. जो भी एंगल यहाँ पर है हम लोग उसको थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कर लेंगे, बिकॉज tan pi plus pi by 6 is tan pi by 6. और इसको रियल में ऐड कर देते हैं, 6 1 जा 6 pi plus pi, that is tan 7 pi upon 6. So tan theta equal to tan 7 pi by 6. Therefore theta equal to 7 pi upon 6. Theta क्या आ गया, 7 pi upon 6. Therefore z equal to r, that is r क्या है, 4, r that is 4 cos 7 pi upon 6 plus I sin 7 pi upon 6. ठीक है, पोलर फॉर्म हो गया। तो इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई cos, अब 7 pi upon 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यही एंगल फिर से यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाई 6, लेकिन अब यहाँ cos और साइन के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। It is equal to 4 multiplied by cos pi plus pi by 6 is minus cos pi by 6 minus I sin pi by 6. Both will be negative.
देयरफॉर z रेज टू 5, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसमें होल रेज टू 5 है, तो z रेज टू 5 इक्वल्स 4 इंटू माइनस कॉस पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई अपॉन 6 होल रेज टू 5। तो 4 रेज टू 5 becomes 1024 into minus cos 5 pi upon 6 minus I sin 5 pi upon 6 using डी मोइवर्स थ्योरम। देखो यहाँ n क्या है 5, तो ये 5 से एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया गया। नाउ इट इज इक्वल टू 1024 इंटू माइनस कॉस, अब ये 5 पाई अपॉन 6 को हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 6, और इसकी फॉर्मूला अब यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो इट इज इक्वल टू 1024 इंटू कॉस, अब देखो माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, तो एक्चुअली कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 इज माइनस कॉस पाई बाई 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन अब नहीं दिखेगा, तो कॉस पाई बाई 6, और यहाँ पर साइन पाई माइनस पाई बाई 6 इज साइन पाई बाई 6, इसके लिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन रहेगा। तो माइनस, क्योंकि आता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव एंड साइन पॉजिटिव, तो माइनस आई साइन पाई बाई 6। फिर से देख लो 1024 मल्टीप्लाइड बाय कॉस माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 6, इट इज इक्वल टू 1024 इंटू कॉस, अब देखो कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 इज माइनस कॉस पाई बाई 6, so माइनस माइनस प्लस, इट इज कॉस पाई बाई 6, and here sin pi minus pi by 6 is sin pi by 6, so plus into minus minus only I sin pi by 6. Now substituting the values of cos pi by 6 and sin pi by 6, that is 30 degrees. So it is equal to 1024 multiplied by root 3 upon 2, because cos pi by 6 is root 3 upon 2, minus I into 1 by 2 because sin pi by 6 is half. Now multiplying by 1024 in the bracket, we get 512 root 3 minus 512i, which is of the form a plus bi. So it is your final answer for the question. Here minus 2 root 3 minus 2i, अपना क्वेश्चन जो है minus 2 root 3 minus 2i whole raised to 500 whole raised to 5 equals 512 root 3 minus 512i. Okay, or you can say z raised to 5 equal to 512 रूट 3 माइनस 512i। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 फुल्ली कंप्लीटेड, और कोई भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर होमवर्क के लिए किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिया है। सभी स्टूडेंट इजिली फुल एक्सरसाइज विथ फुल एक्सप्लेनेशन, फुल फार्मूला, फुल रीजन, जो भी जहाँ पर प्रोवाइड करना था वो मैंने दे दिया है, और जहाँ पर नहीं लिखा गया वहाँ मैंने डिक्टेट किया है, तो स्टूडेंट वहाँ पर उसको नोट कर सकते हैं, अपने पेपर में अपने नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं। नाउ ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।